Now, from this class onwards, we are starting section A. So far, we have done section B, that was market structure and game theory. So now we will start with that section A. Section A and section B both has equal weightage. Section B is market structure and game theory. Section A is general equilibrium, efficiency and welfare. General equilibrium, efficiency and welfare is 1 unit, and this is your unit number 1. General equilibrium, efficiency and welfare. In that unit you have to cover chapter number 31 and chapter number 33. 31 and 33 from Varian, and apart from that chapter number 13, but certain pages, not complete chapter. That chapter number 13 from Nicholson and Snyder. So unit number 1 is one section of section A, and apart from that unit number 4. Fourth unit is a market failure. Unit number 4 is a market failure. Just to begin with, I will simply explain what is the link between first unit and the fourth unit. In first unit, we are explaining general equilibrium. General equilibrium model is mainly 2 by 2 by 2 model. So it is 2 by 2 by 2 model. It means we are discussing about two factors of production, suppose labor and capital. By using these two factors of production, economy produces two goods, good 1, good 2, or good X or good Y. So economy is producing two goods, good 1 and good 2, and these two goods will be distributed between two persons, person A and person B. So what we will do in that unit 1 is that we have to allocate resources to production of good 1 and good 2. So 1 will be allocation of resource, that is Pareto efficient allocation of resource. The term Pareto efficiency will become clear, we will explain that. So first part will be the allocation of resource, that will be called production efficiency. That will be your production efficiency, which is mainly dealing with the allocation of resources, labor and capital, and we have to allocate this resource to produce good 1 and good 2. After that, good 1 and good 2 will be distributed between A and B. So second will be efficient distribution of goods. So distribution of goods will be consumption efficiency. That will be consumption efficiency or exchange efficiency, which is this chapter number 31, exchange. And third condition is simultaneous efficiency. Simultaneous efficiency of production as well as of consumption. So remember, when you say general equilibrium means satisfying all three criteria: efficient allocation of resource 1, efficient distribution of goods 2nd, and efficient product combination, that is 3rd, which is simultaneous equilibrium of production as well as consumption. अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन या ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज फेलियर ऑफ मार्केट. सो मार्केट फेलियर मींस फेलियर ऑफ पैरेटो एफिशिएंसी क्राइटेरिया. तो आप क्राइटेरिया लर्न करेंगे यूनिट 1 में, और कब वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा वो सीखेंगे यूनिट नंबर 4 में. तो इन दैट वे लिंक है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4. इन फर्स्ट यूनिट वी आर एक्सप्लेनिंग दोज एफिशिएंसी क्राइटेरिया, and in the fourth unit we will explain when those criteria are not satisfied. So market fails to achieve Pareto efficiency in production, market fails to achieve Pareto efficiency in consumption, and market fails to achieve simultaneous product mix as well. And that market failure will arise due to 3 reasons. One is externality, second will be public good,
and third one is asymmetric information. Asymmetric information, and these are three separate chapters. This is chapter number 34, this is chapter number 36, and this is chapter number 37. All three chapters from Varian. So Varian के mainly complete unit number 1 and unit number 4 Varian से पढ़ना है except for this chapter. So there basically we have to deal with those 5 chapters. One is exchange, second is welfare, 31 is exchange, 33 is welfare, then externalities, public good and asymmetric information. Link clear है? In first unit we have to explain Pareto efficiency. In fourth unit we will explain when that condition is violated. So market fails, and when I say market fails, it is the competitive market which fails. Perfect competition का market fail होगा if there is presence of externality, provision of public good or asymmetric information. So now we will start with this chapter number 31 exchange. Remember Pareto efficiency में तीन condition होते हैं, production का, consumption का और simultaneous. अब syllabus के accordingly ये start हो रहा है 31 से. 31 मतलब exchange directly. So we are basically directly dealing with second condition, which is consumption efficiency, that is exchange efficiency. तो production का chapter उससे पहले का, but syllabus के accordingly directly आपको start करना है chapter 31 से exchange से, ठीक है? So next page, chapter 31. Chapter number 31. Exchange. Remember, just कुछ एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिएगा पहले. Just wait here, अभी कॉपी नहीं करना. There are two person A and person B, and they have some endowment. तो endowment with person A, endowment with person B, डिनोट ऐसे कर लेंगे. मान लेते हैं कि पर्सन ए एंड बी आर टू फार्मर्स एंड दे हैव प्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ राइस एंड व्हीट. सो इफ दे हैव प्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ राइस एंड व्हीट, देयर एंडाउमेंट विल बी डिनोटेड इन दिस वे. एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन ए, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन ए. रीड ऐसे करिएगा, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन ए, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन ए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, suppose farmer A has produced 20 kg of rice and 30 kg of wheat. तो न्यूमेरिकल में ये नंबर लिखा होगा आपके लिए, क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यूज गिवन होंगे, आप उसको रीड करेगा एंडाउमेंट से. एंडाउमेंट के टर्म से आप फेमिलियर. एंडाउमेंट इज व्हाट वी हैव. एंडाउमेंट विथ पर्सन बी, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन बी, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन बी. अब अगर ये वैल्यू लेट अस से इफ इट इज 30 kg of good 1, that is rice, and say 40 kg of good 2 wheat. इस इंफॉर्मेशन को मुझे एजवर्थ बॉक्स में शो करना है पहला. तो सबसे पहले एजवर्थ बॉक्स कैसे ड्रॉ करना वो लर्न कीजिएगा. अब आप ये बताओ गुड 1 की टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, बिकॉज 2 पर्सन इकॉनमी है. तो गुड 1 की क्वांटिटी पर्सन ए के पास 20 है, पर्सन बी के पास 30 है. तो गुड 1 की क्वांटिटी पर्सन ए प्लस गुड 1 की क्वांटिटी जो बी के पास अवेलेबल है वो ऐड कर दिया. तो 20 और 30 ऐड करके ये 50 kg टोटल क्वांटिटी होगी. वो 50 kg आप यहाँ मार्क कर देंगे. ये एक्स एक्सेस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, ये टोटल क्वांटिटी. गुड 2 की क्वांटिटी 30 और 40. एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ ए प्लस एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ बी, ये 30 और 40 ऐड करके 70 kg यहाँ लिखिएगा और 70 वर्टिकल एक्सेस पे लेंगे. मतलब गुड 2 वर्टिकल एक्सेस पे, गुड 1 हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे. डायमेंशन क्लियर है. ये 50 इधर हॉरिजॉन्टल पे ले रहे हैं, 70 वर्टिकल पे ले रहे हैं. और इस डायमेंशन का बॉक्स बना लेना है.
and that box is called Edgeworth box and it is Edgeworth box of consumption because जो गुड अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए। बॉक्स को फर्दर रीड करने के लिए यहाँ प्लेस करेंगे पर्सन ए को और बी के लिए ओरियन ये होगा, बी को यहाँ से रीड करना है, ए को यहाँ से रीड करना है। एंडोमेंट बॉक्स ड्रॉ करते समय आपने टोटल ले रखा है, नाउ बॉक्स के अंदर एंडोमेंट का बंडल मार्क करना है। बॉक्स के अंदर एंडोमेंट बंडल मार्क करते समय जस्ट कंसीडर पर्सन ए, तो बताना ए के पास कितनी क्वांटिटी है 20,30। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 50 है और ये 70 है तो 20,30 की प्लॉटिंग करनी है। 20 आपने यहाँ ले लिया और 30 यहाँ ले लिया। 20 और 30 का जो इंटरसेप्ट आएगा वो मार्क कर लेंगे। और रिमेंबर दिस इज द पॉइंट ऑफ एंडोमेंट एंड इट इज पॉइंट ऑफ एंडोमेंट फॉर ए एंड बी बोथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ए के लिए बनाया, ए का अगर मार्क किया तो बी का ऑटोमेटिकली मार्क हो गया, बी का ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है बिकॉज बी के लिए हमने ओरियन क्या मान रखा, बी का ओरियन ये है। तो अगर बी के लिए ओरियन, अब अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से 70 है, अप टू दिस अगर 30 ले लिया है तो रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा वो 40 है। तो रिमेनिंग डिफरेंस 40 का मतलब है बी के लिए 40 यूनिट गुड 2 है ये वैल्यू, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस पूरा 50 था, 20 यहाँ तक ले रखा है, तो रिमेनिंग जो गैप हो गया वो 30 हो जाएगा गुड 1, तो 30 यूनिट गुड 1 के लिए हो गया। बॉक्स बनाते समय टोटल लेना है, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद एंडोमेंट बंडल मार्क करते समय सिर्फ ए का कंसीडर करना, मतलब हमने कंसीडर दोनों का ही किया बट रिबैलेंसिंग वैल्यू पर्सन बी के लिए हो जाएगी। तो वैल्यू मार्क दैट पॉइंट ऑफ एंडोमेंट, फिर बॉक्स के अंदर ए और बी नहीं लिखना है बिकॉज पॉइंट ऑफ एंडोमेंट दोनों के लिए सेम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एंडोमेंट सेम हो जाएगा, एंडोमेंट की वैल्यू तो अलग अलग है और पॉइंट ऑफ एंडोमेंट सेम हो जाएगा। तो ये मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बॉक्स बनाते समय गुड 1 के एंडोमेंट को टोटल करना, गुड 2 का एंडोमेंट टोटल कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे गुड 1, वर्टिकल पे गुड 2। ये आपका पहला काम है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जैसे अगर आप पास्ट पेपर को कंसिडर करो तो फर्स्ट प्रॉब्लम नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर होता है जिसमें एंडोमेंट गिवन है और एंडोमेंट गिवन होने के बाद आपसे कहा जाएगा आप उसका बॉक्स ड्रॉ करो। सो जस्ट वन, like if you read this question number 1 in 2013, the endowment of consumer A is 800 unit of X and 800 unit of Y. Endowment of consumer B is 200 unit of X and 4200 unit of Y. First part है draw an appropriate Edgeworth box showing the endowment. अब एक नंबर का मान लो इस तरीके का क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो एंडोमेंट अगर गिवन है और आपसे कहा गया ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट एजवर्थ बॉक्स शोइंग द एंडोमेंट, तो ए का एंडोमेंट क्या हो गया 800x और 800y, बी के पास 200 और 4200 है, 200 और 4200, तो इसका बॉक्स बन जाएगा। प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस में आप ए और बी का एंडोमेंट पहले मार्क कर लेंगे, ए और बी का एंडोमेंट मार्क करने के बाद गुड 1 का एंडोमेंट टोटल कर लेना है, लाइक इन दिस वे। पर्सन ए के पास जो एंडोमेंट है वो लिख दीजिए, तो पर्सन ए के पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें 800x है और 800y है, और बी के पास जो एंडोमेंट है उसमें 200x है 4200y है, तो x की टोटल क्वांटिटी हो गई 1000 आपने ये ले लिया, y की टोटल क्वांटिटी 5000, वर्टिकल एक्सेस पे 5000 इधर कर लेंगे। इस डायमेंशन का बॉक्स बना लेंगे पहले, फिर पर्सन ए को यहाँ प्लेस करना है, पर्सन बी को यहाँ प्लेस कर दीजिए, ए का ओरियन ये हो जाएगा, बी का ओरियन वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो जाएगा। एंडोमेंट पॉइंट मार्क करते समय सिर्फ ए का कंसीडर कर लो आप, 800 मार्क कर लेंगे, तो 800 ए के पास और 800 वाई ए के पास, 800 और 800 का पॉइंट, दिस इज एंडोमेंट, और रेस्ट वैल्यू पर्सन बी के लिए हो जाएगी, तो बी के लिए ये 4200 हो जाएगा वाई और ये 200 हो जाएगा एक्स,
ठीक है। सिंबॉलिकली अगर मार्क करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन ए, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन ए, यहाँ लिखेंगे एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन बी, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन बी। क्लियर? So this is your step 1. Now we have to move to the efficient allocation. So how to explain that efficient allocation subsequently? बॉक्स के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो एक सर्टेन एलोकेशन को शो करते हैं। आपको ये बताना है कि इनमें जितने भी एलोकेशन हैं उनमें कौन सा एलोकेशन एफिशिएंट है। तो अब मैं नंबर को इग्नोर करते हुए कुछ, suppose I take one Edgeworth box, person A and person B. If I mark any point here, तो ये पॉइंट एक सर्टेन एलोकेशन दिखाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा गुड्स का बिटवीन ए एंड बी। ए, जैसे यहाँ से आपने कोई नंबर मार्क कर लिया x के लिए, y के लिए, ये x और y हो जाएगा या गुड 1 गुड 2 हो जाएगा। आपको ये चेक करना है कि क्या ये एलोकेशन एफिशिएंट है या नहीं है। अब वर्ड अगर एफिशिएंट से यूज़ करते हैं तो लिखा हो या ना लिखा हो, रिमेंबर वी हैव टू मेजर Pareto efficient allocation. And what is the meaning of Pareto efficient allocation? I give that definition first, then I will elaborate. A Pareto efficient allocation or distribution will be that distribution where it is not possible to make someone better off unless you make someone else worse off. So if an allocation is Pareto efficient or a distribution is Pareto efficient, then you cannot make anyone better off unless you make someone else worse off. But if you can make someone better off without making anyone else worse off, then that allocation is not Pareto efficient. I repeat the point. If an allocation is efficient already, then you cannot make anyone better off without making anyone else worse off. But if an allocation is inefficient, then you can make someone better off without making anyone else worse off. This point will become clear when you use it graphically. For person A आपने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया. Now you can draw indifference curve for A, higher indifference curve reap and higher satisfaction and so on. B के लिए इंडिफरेंस कर्व B के रेस्पेक्ट में कॉन्वेक्स होगा, it will appear to you concave. हायर इंडिफरेंस का इधर होता जाएगा. आपको बेसिकली चेक ये करना है कि क्या कोई एलोकेशन एफिशिएंट है या नहीं. ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, आपको इवेलुएट करना वेदर इट इज एफिशिएंट और नॉट. ये पॉइंट मार्क किया Z, तो बताओ ये पॉइंट Z एफिशिएंट है या नहीं है, वेदर दिस पॉइंट Z इज एफिशिएंट पॉइंट और नॉट. ये Z पॉइंट को चेक कर रहे हैं कि एफिशिएंट है या नहीं है. अगर Z से M पॉइंट पे मूव कर जाते हैं, Z टू M, तो एज यू मूव फ्रॉम Z टू M, यूटिलिटी ऑफ पर्सन B विल रिमेन सेम, बट एज यू मूव फ्रॉम Z टू M, यूटिलिटी ऑफ A विल इंक्रीज बिकॉज A विल मूव. Z पॉइंट से जो इंडिफरेंस कर्व जा रहा है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व है और M पॉइंट पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर है, बट इट इज हायर फॉर पर्सन A. इट मीन्स व्हेन यू मूव फ्रॉम Z टू M, you are making A better off without making B worse off. Therefore Z point was not efficient. Since it was not efficient, so it was possible that you can make someone better off without making anyone else worse off. वैसे अगर M पॉइंट से N पॉइंट की तरफ आ गए तो अब ये Z और N ये दोनों सेम इंडिफरेंस कर पे हैं, तो पर्सन A की यूटिलिटी सेम होगी बट B की यूटिलिटी हायर हो जाएगी बिकॉज Z पॉइंट का इंडिफरेंस कब लोअर होगा, N पॉइंट का इंडिफरेंस कब हायर है. सो एज यू मूव फ्रॉम Z टू N, देन यू आर मेकिंग B बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग A worse off. So by both logic, Z point is not Pareto efficient. If you move somewhere in between का पॉइंट अगर मार्क कर दिया R, तो Z से अगर R की तरफ आएंगे तो A और B दोनों ही बेटर ऑफ हो रहे हैं. तो ऑल आर्गुमेंट से दैट Z पॉइंट इज नॉट Pareto efficient.
अब आप ये चेक करो कि क्या m पॉइंट एफिशिएंट है। रिमेंबर m पॉइंट एफिशिएंट होगा। रीजन, इफ यू मूव अवे फ्रॉम m आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, you are making one person better off but other person worse off. So m point is Pareto efficient in that sense. Better description here further, जब तक ये कॉमन एरिया आएगा दो इंडिफरेंस कर्व के बीच का, तब तक Pareto एफिशिएंसी अचीव नहीं हुई है। रीज़न, यू कैन मेक बोथ बेटर ऑफ। लेकिन अगर इस बॉक्स के अंदर मैंने एक इंडिफरेंस का बनाया, दूसरा इंडिफरेंस का बनाया, ये कॉमन एरिया दिख रहा है। अगर फर्दर हायर इंडिफरेंस का बनाए ए का और बी का, वो कॉमन वाला एरिया कम हो जाएगा। तो जब वो कॉमन वाला एरिया एग्जॉस्ट हो जाए, तो एग्जॉस्ट कब होना है? कॉमन एरिया एग्जॉस्ट होगा जब दो ऐसे टेंजेंट हो जाएंगे, तो वो कॉमन एरिया एग्जॉस्ट हो गया। देन दिस टेंजेंसी पॉइंट विल बी Pareto एफिशिएंट पॉइंट। बट बॉक्स के अंदर टेंजेंसी तो कई सारी हो सकती है। दैट मीन्स देयर कैन बी मेनी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयर कैन बी मेनी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और जितने भी एफिशिएंट पॉइंट्स हैं इनको अगर आप ज्वाइन कर लो, तो बाय ज्वाइनिंग ऑल एफिशिएंट पॉइंट यू विल गेट कॉन्ट्रैक्ट कर्व, वी विल गेट कॉन्ट्रैक्ट कर्व, एंड दैट इज कॉल्ड एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन के अंदर ड्रॉ करते हैं। एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व ऑफ कंजम्पशन कहलाएगा। और न्यूमेरिकल में आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्व का इक्वेशन लिखना है। तो अगर क्वेश्चन सिंपल है, मतलब वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेज हैं, तो दोनों पर्सन का इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर, और टेंजेंसी का मतलब है देयर स्लोप विल बी सेम। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज MRS। तो MRS ऑफ A इक्वल टू MRS ऑफ B एट ऑल पॉइंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो आप पर्सन ए और बी का MRS कैलकुलेट करना, और सेम 3 रिकॉल करके बताइए हाउ टू फाइंड MRS। MRS कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2। एंड हाउ टू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है। बट MRS A इक्वल टू MRS B इसको याद नहीं करना है। ये कंडीशन तभी तक रहेगा जब तक इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स होगा फिर टेंजेंसी होगी, और टेंजेंसी होगी तो ये कंडीशन लिखेंगे। बट इंडिफरेंस कर्व का कॉन्वेक्स होना जरूरी नहीं है। प्रेफरेंस कुड बी ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर स्लोप कैलकुलेट नहीं होगा। प्रेफरेंस कुड बी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जहाँ MRS की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इट कुड बी कॉसिलिनियर, तो देयर कैन बी वेरियस प्रेफरेंसेस। सो MRS A इक्वल टू MRS B नॉर्मली लिखेंगे जब ये प्रेफरेंसेस कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व का आपको बेसिकली इक्वेशन लिखना है। तो Pareto एफिशिएंसी टर्म क्लियर है। कोई एलोकेशन एफिशिएंट होगा इफ यू कैन नॉट मेक एनी वन बेटर ऑफ अनलेस यू मेक समवन एल्स वर्स ऑफ, बट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी एफिशिएंट इफ यू कैन मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन एल्स वर्स ऑफ। तो ये रफ में इसी तरीके से भी नोट कर लेंगे, और जस्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ टर्म को, जो कॉमन डेफिनेशन है उसको रजिस्टर में नोट कर लीजिए। Redden. An efficient distribution will be that distribution where we cannot make anyone better off without making anyone else worse off. Without making anyone else worse off. Without making anyone else worse off. However, a distribution will be Pareto inefficient if. A distribution will be Pareto inefficient if we can make someone better off without making anyone else worse off. Without making anyone else worse off. Next sentence, next paragraph rather.
the locus of all tangency point, these tangency points, the locus of all tangency point is called Edgeworth-Contract curve, is called Edgeworth-Contract curve. The locus of all tangency point is called Edgeworth-Contract curve. It means along contract curve, distribution of good is Pareto efficient. Along contract curve, distribution of good is Pareto efficient. Clear? Distribution of good is Pareto efficient. कॉन्ट्रैक्ट कर्व के हर पॉइंट पे पेरेटो एफिशिएंसी है, इंक्लूडिंग ओरिजिन. ठीक है, ये ओरिजिन का पॉइंट भी उतना ही एफिशिएंट है जितना ये पॉइंट होगा या दूसरा पॉइंट होगा. बट रिमेंबर, ओरिजिन के पॉइंट पे ए की यूटिलिटी 0 हो गई और बी की मैक्सिमाइज हो गई है. सो नाउ you can make A better off only when you make B worse off. So including the origin point, all points of tangency are Pareto efficient. Now move to the main aspect of how to calculate it numerically. For that purpose, make heading of market trade. Trade मतलब exchange है. Market trade और exchange. एक बॉक्स ड्रॉ किया है बेस्ड अपॉन एंडाउमेंट, और एंडाउमेंट का बंडल मार्क कर लिया एनीवेयर. एंडाउमेंट का बंडल अगर मार्क करते हैं तो यहाँ से मुझे मार्क क्या करना है, दिस इज एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन ए. ठीक है, इधर से लिखेंगे एंडाउमेंट ऑफ गुड 2, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन ए, रेस्ट वैल्यू बी के लिए. या लिखिएगा एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ पर्सन बी. यह आएगा एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ पर्सन बी. बी के लिए आप इधर से मेजर कर रहे हो, बी का ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है. ए के लिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. दिस इज द पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट. अब ट्रेड दो पर्सन के बीच होना है. रिमेंबर, एक रफ डायग्राम में से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको पहले ध्यान दीजिएगा. जैसे सेमेस्टर 3 के अंदर कंज्यूमर थ्योरी में आप बजट लाइन ड्रॉ करते थे पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट. एंड वाई इट ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट? बिकॉज endowment bundle is always just affordable to that person and endowment determines his income also. So given this point of endowment, optimal choice endowment के लेफ्ट भी हो सकता था और ऑप्टिमल चॉइस इसके राइट भी हो सकता है. अगर ऑप्टिमल चॉइस इसके लेफ्ट साइड आ रहा है तो यहाँ से आप पर्सन का डिमांड कैलकुलेट करते थे, जिसको कहते थे ग्रॉस डिमांड. तो ये हो जाता था X1 और ये होता था एंडाउमेंट, और ग्रॉस डिमांड से एंडाउमेंट माइनस करने पे नेट डिमांड आएगा. नेट डिमांड पॉजिटिव मींस पर्सन इज बायर और नेट डिमांड नेगेटिव का मतलब है पर्सन इज सेलर. तो एंडाउमेंट से कम कंज्यूम करने का मतलब होता है पर्सन इज सेलिंग गुड 1, और एंडाउमेंट से ज़्यादा कंज्यूम करने का मतलब है पर्सन इज बाइंग दैट गुड. तो वो गुड 2 को बाई कर रहा है, गुड 1 को सेल कर रहा है. बट सेम 3 में ये क्वेश्चन नहीं होता था कि उसने किसको सेल किया और किससे बाई किया. मानते थे कि मार्केट में सेल किया और मार्केट से बाई कर लिया. बट अब ट्रेड ए और बी के बीच हो रहा है. देयर आर ओनली 2 पर्सन, सो ए कैन ट्रेड विद बी और बी कैन ट्रेड विद ए. तो आर्गुमेंट वही है, उसे बॉक्स में सिर्फ शो कर रहे हैं बिकॉज वो 1 पर्सन के लिए था, अब 2 पर्सन के लिए. तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली थोड़ी ऐड होगी जनरल इलेक्ट्रम में. Rather than dealing with 1 person, now we have to deal with 2 person and they may have same utility function, may have different utility function, और utility function भी कई सारे possible है. तो जो सेम 3 के अंदर ये आर्गुमेंट है यहाँ तक क्लियर है. इसी को आप बॉक्स में शो कर रहे हो, मतलब मैंने इसे बॉक्स में बस क्लोज कर दिया.
बॉक्स ड्रॉ करके यहाँ शो करना है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर रहे हैं। अब एंडाउमेंट वाले बंडल से मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर लिया, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ एंडाउमेंट। ठीक है, ये रफ डायग्राम क्लियर है। रिमेंबर बजट लाइन का स्लोप P1/P2 होगा, प्राइस रेशो, बट ऑल प्राइसेस आर नॉट इक्वल। मैंने आर्बिट्रली अभी एक लाइन बना ली है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द इक्विवेलेंट प्राइस रेशो। ये डायग्राम जो पहला ड्रॉ कर रहे हैं ये डेलिबरेटली ड्रॉ किया जा रहा है फॉर डिसइक्विवेलेंट। ये डायग्राम डेलिबरेटली ड्रॉ कर रहे हैं अभी डिसइक्विवेलेंट के लिए। इक्विवेलेंट का डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ इन वन फ्रेम। नाउ गिवन दिस बजट लाइन, पर्सन ए इज ऑप्टिमाइजिंग हिज यूटिलिटी, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी जब ए का इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे टेंजेंट होगा। मान लेते हैं टेंजेंसी का पॉइंट ये हो गया, सो दैट टेंजेंसी डिटरमाइंस डिमांड फॉर गुड 1/A। सो दिस गैप इज व्हाट, एंडाउमेंट ये था, उसने कंज्यूम ये किया, सो पर्सन ए इज सेलर ऑफ गुड 1, person A is seller of good 1, and how much quantity A wants to sell? A wants to sell this gap. At the same time, this is demand for good 2/A. So demand for good 2/A, that means this gap A wants to buy. So A wants to sell this quantity of good 1 and A wants to buy this much quantity of good 2. बट मार्केट के अंदर इक्विवेलेंट तभी होगा, रिमेंबर दो गुड के मार्केट है, एक गुड 1 का मार्केट है, एक गुड 2 का मार्केट है। गुड 1 के मार्केट में इक्विवेलेंट तभी होगा जब जितनी क्वांटिटी पर्सन ए सेल कर रहा है एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी पर्सन बी बाई करे। जितनी क्वांटिटी पर्सन ए सेल कर रहा है एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी अगर पर्सन बी बाई करता है देन वी हैव अ इक्विवेलेंट इन दैट मार्केट। बट इफ ए वांट्स टू सेल मोर एंड बी वांट्स टू बाई लेस then there will be disequilibrium in the market। तो अब आप ये बताओ कि अगर पर्सन बी के लिए भी सेम बजट लाइन है, एंडाउमेंट सेम है, मतलब पॉइंट सेम है, प्राइस रेशियो सेम होगा दोनों के लिए बिकॉज मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो पर्सन बी अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। अगर मैं बी का इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे टेंजेंट बना रहा हूँ बट डिफरेंट जगह पे टेंजेंट बनाया मैंने, बी का इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टेंजेंट है, सो दिस पॉइंट विल डिटरमाइन demand for good 1/B and this point will determine demand for good 2 by person B। तो अब आप ये बताओ कि पर्सन बी किस कमोडिटी का बायर है और किसका सेलर है। बी के पास गुड 1 का एंडाउमेंट कम है, उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है, सो बी वांट्स टू बाई दिस मच क्वांटिटी ऑफ गुड 1 एंड बी वांट्स टू सेल दिस मच क्वांटिटी ऑफ गुड 2। अब इस आर्गुमेंट के बेसिस पे ये बताना कि गुड 1 के मार्केट में क्या कंडीशन है, गुड 2 के मार्केट में क्या कंडीशन है। मार्केट फॉर गुड 1 एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है वो देख के बताइए। गुड 1 के मार्केट में, गुड 1 के मार्केट में ए सेलर है, ए वांट्स टू सेल दिस मच क्वांटिटी, बी बायर है बट बी वांट्स टू बाई लेस क्वांटिटी, तो इफ ए वांट्स टू सेल मोर बी वांट्स टू बाई लेस, that means in the market for good 1 we have excess supply। जिस कमोडिटी के मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगा प्राइस ऑफ दैट गुड विल फॉल ड्यू टू दैट एक्सेस सप्लाई बिकॉज मार्केट इज फ्री। नाउ थिंक अबाउट मार्केट फॉर गुड 2। गुड 2 के मार्केट में पर्सन ए बायर है और बी सेलर है बट बी वांट्स टू सेल लेस, ए वांट्स टू बाई मोर, सो इन द मार्केट फॉर good 2 we have excess demand, as we have excess demand price of that good will increase। so my question is what is the effect on P1/P2, प्राइस रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा, P1 अपॉन P2 की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होना है। P1 की वैल्यू कम हो रही है और P2 की वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमरेटर कम हो रहा है डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, therefore प्राइस रेशियो विल फॉल
मतलब जो लाइन आपने यहाँ बना रखा है ये लाइन धीरे धीरे फ्लैटर होती जाएगी। और कब तक फ्लैटर होगी? जब तक दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, मतलब मार्केट क्लियर नहीं हो जाता। सो दिस इज द डायग्राम फॉर डिसइक्विलिब्रियम। नाउ ड्यू टू दैट डिसइक्विलिब्रियम प्राइस विल चेंज, और प्राइस तब तक चेंज होगा जब तक दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम के लिए अब इसके पैरेलल में मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बॉक्स सेम लिया है, ये बजट लाइन थोड़ा फ्लैट कर लिया मैंने, तो लाइन फ्लैटर होगी। पासिंग थ्रू दैट एंडाउमेंट, एंडाउमेंट के बंडल वैसे मार्क कर लेने पर्सन ए और बी के लिए। एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विद बी, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विद बी, पर्सन बी और पर्सन ए। फर्क क्या करना है इस लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में और राइट साइड वाले डायग्राम में? अगर ए का ऑप्टिमल चॉइस यहाँ लिखा है तो यहाँ से पर्सन ए के लिए डिमांड कैलकुलेट हो गया x1 ए x2 ए। अगर बी का ऑप्टिमल चॉइस भी सेम पॉइंट पे हो तो यहाँ से x1 बी और ये मार्क हो जाएगा x2 बी। अब आप ये बताओ, इन दैट डायग्राम पर्सन ए इज सेलर ऑफ गुड 1, और जितनी क्वांटिटी पर्सन ए सेल कर रहा है एग्जैक्टली उतनी ही क्वांटिटी पर्सन बी बाई कर रहा है। इसका मतलब मार्केट फॉर गुड 1 में इक्विलिब्रियम है, और जितनी क्वांटिटी गुड 2 का पर्सन ए बाई कर रहा है उतनी क्वांटिटी पर्सन बी सेल कर रहा है। तो गुड 2 के मार्केट के अंदर भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम तब आ रहा है जब हमने दोनों पर्सन का इंडिफरेंस का बजट लाइन पे टेंजेंट करने के साथ साथ एक दूसरे पे भी टेंजेंट किया। मतलब यहाँ पे बजट लाइन पे टेंजेंट था बट पोजीशन अलग अलग था, और यहाँ पे दोनों का इंडिफरेंस का दे आर टेंजेंट ऑन ईच अदर। बट इफ they are tangent on each other, it also means that it is Pareto efficient, because tangency के point से Pareto efficiency आती है। So from that you can conclude one thing: we have market equilibrium, but that market equilibrium is also Pareto efficient. Market equilibrium is always Pareto efficient, but which market? Competitive market. So that will be the statement of first theorem of welfare. फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर कह रहा है इफ वी हैव अ मार्केट इक्विलिब्रियम इट विल बी पेरेटो एफिशिएंट। सो इन दिस डायग्राम वी हैव अ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड दैट मार्केट इक्विलिब्रियम इज आल्सो पेरेटो एफिशिएंट। सो दैट इज योर फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। मार्केट इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी पेरेटो एफिशिएंट। मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होगा वो पेरेटो एफिशिएंट है। और मुझे मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस रेशियो है P1 बाई P2, इक्विलिब्रियम की वैल्यू के लिए स्टार लगाया। मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस रेशियो है मुझे वो कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल में ये फाइंड करना है। न्यूमेरिकली यू हैव टू फाइंड दैट प्राइस रेशियो। सो वी हैव टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो विच इज रेफर्ड एज वाल्डर्सियन इक्विलिब्रियम। ये जनरल इक्विलिब्रियम का इंटायर कंसेप्ट वाल्डर्स का है। तो आइदर क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम और फाइंड वाल्डर्स इक्विलिब्रियम और सिंपली मार्केट इक्विलिब्रियम। सो मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करेंगे हम? P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट रिमेंबर रेशियो निकालेंगे हम यहाँ पे, मतलब P1 बाई P2 निकालना है, नॉट ओनली P1 और नॉट ओनली P2। वी हैव टू कैलकुलेट दैट प्राइस रेशियो। बट वाई वी आर फोकसिंग ऑन प्राइस रेशियो? ये डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम डिसइक्विलिब्रियम का है, ये डायग्राम इक्विलिब्रियम के लिए। दिस जस्ट टू कंपेयर डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। नाउ टू कैलकुलेट इट न्यूमेरिकली व्हाट वी विल डू, we will write an equation or algebra of equilibrium. Make this heading algebra of equilibrium. Algebra of equilibrium. And related to that will be the Walder's law. Algebra of equilibrium and Walder's law. ठीक है, move to the next part now. Remember, since there are two persons, person A and person B, we are writing the condition for equilibrium. But condition for equilibrium require what?
डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई, तो डिमांड को सप्लाई से इक्वेट करना है। और दो कमोडिटीज़ हैं, एक गुड 1 है एक गुड 2 है। बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई। गुड 1 will be demanded by A also, good 1 will be demanded by B also. So I write it in this form. Demand for good 1 by A, demand for good 1 by A plus demand for good 1 by B. So that is the total demand for good 1 must be equal to total supply, but supply means endowment, जो available होगा वही quantity supplied है। So endowment of good 1 with A plus endowment of good 1 with B। ध्यान देना है, endowment क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है। डिमांड यू हैव टू कैलकुलेट, और उसका मतलब समझ में आ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ डिमांड कैलकुलेट करना है, इसका मतलब डिमांड कैलकुलेट करने का मतलब है एंडाउमेंट आपके पास गिवन होगा, आप बजट लाइन लिख लोगे, और ऑप्टिमल चॉइस कैलकुलेट करना है। तो ऑप्टिमल चॉइस कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में यूटीडी फंक्शन दिया जाएगा। सो इफ़ यू नो यूटीडी फंक्शन, इफ़ यू नो प्राइस, यू नो एंडाउमेंट, यू कैन कैलकुलेट ऑप्टिमल चॉइस। वहाँ से हम 3 का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो ये अप्लाई करना भी कंसेप्ट को। बट रिमेंबर, जब आप डिमांड कैलकुलेट करते हो तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको ज़्यादातर कंडीशन में जो लिखूँगा वो कंडीशन इस फॉर्म में हो जाएगा। डिमांड फॉर गुड 1 फॉर पर्सन ए कैलकुलेटेड एट प्राइस P1 P2, और ये मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैलकुलेट किया, प्लस डिमांड फॉर गुड 1 बाई बी कैलकुलेटेड एट प्राइस P1 P2 इक्वल टू एंडाउमेंट विथ ए, एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विद बी। एंडाउमेंट में प्राइस नहीं लिखना है, डिमांड में लिखना है, बिकॉज डिमांड प्राइस का फंक्शन है। प्राइस चेंज होने पे एंडाउमेंट चेंज नहीं होगा, बट प्राइस चेंज होने पे डिमांड की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए डिमांड के टर्म में आप इस टर्म में लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया। अब रिमेंबर, यहाँ जब आप लिखोगे x1 ये ग्रॉस डिमांड है, और व्हाट वाज नेट डिमांड, कैलकुलेट कैसे करते थे, ग्रॉस डिमांड से एंडाउमेंट माइनस करोगे। तो ये ग्रॉस डिमांड हो गया, इसमें से एंडाउमेंट माइनस कर दे रहे हैं। तो एंडाउमेंट माइनस करने का मतलब है ये टर्म आपने लेफ्ट साइड लिखा है, x1A एट P1 P2 प्राइस माइनस एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ ए, ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस अब सेकेंड टर्म ये शिफ्ट करिएगा लेफ्ट साइड, x1B एट प्राइस P1 P2 माइनस एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 विथ B। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो कंप्लीट टर्म ये ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट हो गया। ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट नेट डिमांड होता है। तो ये नेट डिमांड ऑफ गुड 1 बाई ए हो गया, ये नेट डिमांड ऑफ गुड 1 बाई बी हो गया, और नेट डिमांड का सम इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स व्हाट, अगर नेट डिमांड का सम इक्वल टू 0 है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव है। एक पर्सन अगर बायर होगा तो सेकंड पर्सन सेलर होगा। इस नेट डिमांड को सिंबॉलिकली अब लिखेगा E1A, सो दैट E1A ब्रैकेट में P1 P2 प्लस E1B एट P1 P2 इक्वल टू 0। मतलब इस नेट डिमांड को आप एक्सेस डिमांड कहते हैं। नेट डिमांड और एक्सेस डिमांड में कोई डिफरेंस नहीं, एक्सेस डिमांड इज नेट डिमांड। एक्सेस डिमांड के लिए सिंबल यूज किया E। नाउ जैसे आप पर्सन ए के लिए लिख रहे हो, सिमिलरली इक्वेशन लिखा जा सकता है फॉर पर्सन बी। सिमिलरली यू कैन टेक इट फॉर गुड 2। तो जहाँ जहाँ 1 लिख रखा है उसकी जगह गुड 2 आ गया। एक्सेस डिमांड फॉर गुड 1 गुड 2 बाई ए एट P1 P2 प्लस एक्सेस डिमांड ऑफ गुड 2 with P1 P2 is equal to 0। और ये जो A1A प्लस A1B है, मतलब गुड 1 के दोनों के एक्सेस डिमांड को, इन दोनों को ऐड करके
कहेंगे एग्रीगेट एक्सेस डिमांड, मतलब गुड 1 का डिमांड ए का और गुड 1 का डिमांड बी का एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को एग्रीगेट करके जेड से डिनोट करना है, तो जेड से अगर डिनोट करेंगे तो एग्रीगेट हो गया, अब ए और बी नहीं लिखेंगे। Z1 एट प्राइस P1 P2 इक्वल टू 0 और सिमिलरली Z2 एट प्राइस P1 P2 इक्वल टू 0। तो यू स्टार्टेड विथ ग्रॉस डिमांड, देन यू मूव टू नेट डिमांड। नेट डिमांड कोई एक्सेस डिमांड का है और एक्सेस डिमांड ऐड करने के बाद एग्रीगेट एक्सेस डिमांड हो गया। क्लियर है? एक्सेस डिमांड आपको फाइंड करना है, एंडोमेंट गिवन होगा, वहाँ से नेट डिमांड आ जाएगा। नेट डिमांड को ही एक्सेस डिमांड कह रहे हैं, एक्सेस डिमांड को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड आएगा, तो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड की वैल्यू भी इक्वल टू 0 होगी। 0 इसलिए आता है बिकॉज वन पर्सन अगर बाहर है देन अदर मस्ट बी सेलर, द सम मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ रिलेटेड टू दैट देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ वॉल्डर्स लॉ। यहाँ से एक कंसेप्ट बेसिकली आपको रिलेट करना है विथ वॉल्डर्स लॉ। सिंपल सा प्रूफ है, वो प्रूफ देख लेंगे। पहले आप वॉल्डर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिए। जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ वॉल्डर्स लॉ। वॉल्डर्स लॉ स्टेट्स दैट Waller's law states that value of aggregate excess demand is identically equal to 0. Value of aggregate excess demand is identically equal to 0. Value of aggregate excess demand is identically equal to 0. Underline that. When you say value of aggregate excess demand ये Z1 है, इसका वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिकली इक्वल टू 0 मीन्स P1 Z1 एट प्राइस P1 P2 प्लस P2 Z2 एट प्राइस P1 P2 आइडेंटिकली इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी का साइन है, दैट मीन्स इट विल बी करेक्ट फॉर ऑल द प्राइसेस। नाउ सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल द प्राइसेस इट मस्ट बी ट्रू फॉर द इक्विवेलेंट प्राइस आल्सो। अगर ये सारे वैल्यूज के लिए सही है तो इक्विवेलेंट वैल्यू के लिए भी सही होल्ड करेगा। अगर कभी रिक्वायरमेंट हो तो एक सिंपल प्रूव है इस स्टेटमेंट का, वो प्रूफ कॉपी कर लो। अगर मैं कहूँ कि पर्सन ए का बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना है तो हाउ यू राइट बजट कंस्ट्रेंट इक्वेशन? बजट कंस्ट्रेंट का इक्वेशन क्या लिखते हैं? P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, और इनकम की जगह P1 W1 प्लस P2 W2। तो आप लिख दो इसको P1 X1 पर्सन ए के लिए लिखा है और ब्रैकेट में P1 P2 लिख देना बिकॉज डिमांड प्राइस का फंक्शन होता है, प्लस मतलब ये एक्चुअल में P1 X1 लिखा है बस, प्लस P2 X2 इक्वल टू M या आइडेंटिकली इक्वल टू M, और इनकम की जगह हाउ टू फाइंड इनकम इन द केस ऑफ एंडोमेंट? एंडोमेंट का वर्थ दैट इज P1 W1A प्लस P2 W2A। ध्यान देना जरा, ये हो गया P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, जो राइट साइड है वो इनकम है। रीअरेंज करके टर्म अभी लिख रहे हैं, P1 W1 को लेफ्ट साइड किया है तो P1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में टर्म हो गया X1A माइनस एंडोमेंट। क्लियर है? प्लस अब ये सेकेंड टर्म लेफ्ट साइड कीजिएगा, P2 कॉमन, इट विल बी X2A माइनस एंडोमेंट ऑफ गुड टू विथ ए आइडेंटिकली इक्वल टू 0। अब आप ये बताओ ब्रैकेट में जो टर्म लिखा है ये एक्चुअल में कौन सा टर्म हो गया? व्हाट इज X1A? X1 इज ग्रॉस डिमांड माइनस एंडोमेंट, तो ग्रॉस डिमांड माइनस एंडोमेंट इज नेट डिमांड, और नेट डिमांड को लिखते कैसे हैं? एक्सेस डिमांड के सिंबल से। सो इट इज P1 E1A प्लस P2 E2A आइडेंटिकली इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली यू विल राइट फॉर पर्सन बी
सिमिलरली पर्सन बी के लिए लिखना है तो आपको तीनों स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए की जगह बी कर दो लास्ट इक्वेशन के अंदर। तो सेकंड पर्सन के लिए लिख दिया P1 E1 B एट P1 P2 प्लस P2 A2 B एट प्राइस P1 P2 identically equal to 0, equation number 2, and adding these two, adding equation number 1 and equation number 2, what you will get, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो P1 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा E1 A प्लस E1 B, बट व्हाट इज E1 A प्लस E1 B, दोनों के एक्स डिमांड को ऐड किया है, तो एक्स डिमांड का जो सम है वो एग्रीगेट एक्स डिमांड हो गया, और एग्रीगेट एक्स डिमांड को लिखेंगे कैसे, जेड के सिंपल से, P1 कॉमन E1 A E1 B, इसको ऐड करके Z1, फिर A और B नहीं लिखने, प्लस P2 कॉमन A2 A A2 B इज Z2 एट प्राइस P1 P2 आइडेंटिकली इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वेशन ऑल वैल्यूज के लिए करेक्ट है, देन इट मस्ट बी करेक्ट फॉर द इक्विवेलेंट वैल्यू आल्सो, इट मस्ट बी ट्रू फॉर द इक्विवेलेंट वैल्यू आल्सो, देयरफॉर for equivalent value I will write P1 star Z1 at price P1 P2 plus P2 star Z2 at price P1 P2 equal to 0. This is your proof of Walras law. पेपर में जनरली प्रूफ वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, बट इनकेस अगर प्रूफ रिक्वायर्ड है तो आप इसको यूज़ करो, बट इसका जो एप्लीकेशन साइड है, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो ज़्यादा रेलिवेंट है, उस पार्ट को आप इसके नीचे डिक्टेशन के फॉर्म लिख देंगे, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट एंगल। ठीक है, इस इक्वेशन के नीचे जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको कॉपी कीजिएगा, बन पाएगा आपको। फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट, फ्रॉम दिस वन, from this it follows that if we find a set of price, if we find a set of price, set of price का मतलब हो गया P1 star comma P2 star, that is a set of price. If we find a set of price where demand for good one, where demand for good one is equal to supply of good one, demand for good one is equal to supply of good one, demand for good one is equal to supply of good one, then it is guaranteed that, then it is guaranteed that, then it is guaranteed that demand for good two, demand for good two must be equal to supply of good two, must be equal to supply of good two। मतलब एक मार्केट में अगर इक्विलिब्रियम है तो सेकंड मार्केट में इक्विलिब्रियम गारंटीड है। इफ वन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, द सेकंड मार्केट मस्ट also be in equilibrium. In general, if there will be market for, in general if there will be market for k number of goods या n number of goods, ऐसे भी लिखना, if there will be market for k number of goods, then we only need to find, then we only need to find a set of price where, then we only need to find a set of price where, set of price where k minus 1, we only need to find a set of price where k minus 1 number of market are in equilibrium, k minus 1 number of market are in equilibrium, full stop. In that case, Walras law implies that, in that case Walras law implies that market for kth good, जो लास्ट कमोडिटी होगी, Walras law implies that market for kth good will automatically be in equilibrium, will automatically be in equilibrium, will automatically be in equilibrium. बट अब ध्यान देना, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है,
हमने कंसीडर कर रखा है के नंबर ऑफ गुड्स और इक्वेशन लिखा है के माइनस वन। तो इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये कहता है कि इफ़ वी आर टेकन के नंबर ऑफ गुड्स, तो मान लेते हैं कि के की वैल्यू 10 है, मतलब 10 डिफरेंट गुड्स ले रखे हैं। तो अगर के माइनस वन मतलब 10 माइनस वन 9 मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, तो 10th मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा। इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग दैट मार्केट फॉर गुड वन का एक इक्वेशन लिखा हमने, जिसमें डिमांड फॉर गुड वन और सप्लाई ऑफ गुड वन इक्वेट किया। सिमिलरली मार्केट फॉर गुड टू का इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे डिमांड को सप्लाई से इक्वेट किया। ऐसे करते हुए हमने 9 कमोडिटी के मार्केट में डिमांड और सप्लाई को इक्वेट कर दिया। तो वाल्डर्स लॉ कहता है कि 10th मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा। बट अब आप ये बताओ, इक्वेशन हमने लिखे कितने, 9, वेरिएबल डिटरमाइन कितने करने हैं, 10, मतलब प्राइस डिटरमाइन करना है 10 गुड्स का, और इक्वेशन लिखा है 9। तो 1 मतलब ओनली 9 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है और 10 कमोडिटी के प्राइस डिटरमाइन करने हैं। तो 1 इक्वेशन शॉर्ट है इनफैक्ट। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी कंसीडर प्राइस ऑफ वन गुड एज न्यूमरेयर। और न्यूमरेयर का कंसेप्ट रिकॉल करके बताना, सम 3 के अंदर किया। न्यूमरेयर मीन्स न्यूमरेयर का मतलब है जिसको आप न्यूमरेयर बनाएंगे उसके प्राइस को कंसिडर कर लेंगे 1, और न्यूमरेयर इज द बेसिस ऑफ प्राइस। उसके रिलेशन में अदर गुड्स का प्राइस एक्सप्रेस होता है। तो एक गुड के प्राइस को आपको 1 कंसिडर करना है और सेकेंड गुड के प्राइस को रिलेटिव टू दैट एक्सप्लेन करना है, विच मीन्स नॉर्मली किसी भी न्यूमेरिकल में 10 कमोडिटी की बात यहाँ हो नहीं रही है। जो मॉडल आप यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज बेसिकली 2x2x2 मॉडल। तो 2x2x2 मॉडल है तो कितने कमोडिटीज हैं, 2 ही गुड्स की बात हो रही है। तो अगर मार्केट के अंदर 2 ही गुड है, हमने एक गुड के मार्केट में इक्विलिब्रियम शो कर दिया, तो सेकंड गुड का मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन एक ही लिखना है, इनफैक्ट सेकंड गुड का मार्केट ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में है। तो होगा क्या, व्हाट वी विल डू दैट वी विल कंसिडर प्राइस ऑफ गुड वन एज 1, उसको न्यूमरेटर बना लेंगे, एंड देन वी विल फाइंड P2। मतलब हमने गुड वन के प्राइस को 1 मानते हुए गुड टू का प्राइस कैलकुलेट किया है, इसलिए आंसर में हमेशा P1 बाय P2 पूछा जाएगा। वी हैव टू डिटरमाइन P1 बाय P2। मतलब P1 अगर हमने 1 माना है तो P2 की वैल्यू 2 आई है। अगर P1 की वैल्यू अलग हो जाती तो P2 की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, बट जो रिलेटिव होगा वो सेम रहना है। जैसे 1/2 लिखो या 2/4 लिखे, वैल्यू 1/2 ही है, बट एब्सोल्यूट नंबर डिफरेंट है। So what we find in general equilibrium is that we write or find the relative price and not the absolute price. जनरल इक्विलिब्रियम में तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ रखा है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। दैट इन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल वी डिटरमाइन रिलेटिव प्राइस एंड नॉट द एब्सोल्यूट प्राइस। वो स्टेटमेंट सिर्फ लिख दीजिए। इन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल वी डिटरमाइन ओनली रिलेटिव प्राइस एंड नॉट एब्सोल्यूट प्राइस। We determine only relative price and not absolute price. We determine only relative price and not absolute price. ठीक है? So we will consider price of one good as numerator and find the price of second commodity only. अब इस context में आप numerical purpose के लिए इसको calculate कर सकते हो। We can apply this concept for calculation. I will give one example, rest will continue, but I will solve one question. वो क्वेश्चन अगर आप पेपर में देखेंगे तो भी मिलेगा और वर्कबुक में भी पहला क्वेश्चन है। वर्कबुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, सो जस्ट सॉल्व दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जस्ट कंसिडर दिस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को आई विल बी प्रोवाइडिंग इट इन दिस फॉर्म। पर्सन ए इज हैविंग एंडाउमेंट, और पर्सन ए के पास एंडाउमेंट है 0,10। 0 गुड 1 है और 10 गुड 2 है। इज यूटिलिटी फंक्शन गुड 1 गुड 2 का यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2, मतलब वेल बिहेव्ड। कॉप डगलस भी आप रीड कर सकते हो। पर्सन बी
person B is having endowment of 20,5 का endowment है, and utility function for B is minimum of x1, x2. मिनिमम ऑफ x1, x2 मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ए के लिए वेल बिहेव फंक्शन है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड मार्केट इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस. फाइंड मार्केट इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट P1 बाई P2, ये कैलकुलेट करना है. फाइंड मार्केट इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस एंड ग्रॉस डिमांड एंड नेट डिमांड. ग्रॉस डिमांड एंड नेट डिमांड. देखो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वी विल सिंपली कंसीडर दैट लेट P1 बी 1. आपने इसको न्यूमरेटर मान लिया, तो न्यूमरेटर अगर मान लिया तो मुझे सिर्फ फाइंड क्या करना है, P2 कैलकुलेट कर रहे हैं. P2 कैलकुलेट करने के लिए यू विल राइट मार्केट इक्विलिब्रियम. दिस मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर गुड 2, सेकेंड गुड का मार्केट इक्विलिब्रियम है. तो यहाँ लिखेंगे डिमांड फॉर गुड 2 बाई ए प्लस डिमांड फॉर गुड 2 बाई बी इक्वल टू सप्लाई. सप्लाई मीन्स एंडाउमेंट. एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ ए, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विथ बी. तो एंडाउमेंट तो क्वेश्चन में गिवन है, गुड 2 का एंडाउमेंट पर्सन ए के पास 10 है और बी के पास 5 है. तो ये नंबर तो आपको मालूम है, ये 10 और ये 5, तो 10 + 5 तो यहाँ लिख दिया. अब बात रहेगी सिर्फ ए का डिमांड निकालना है और बी का डिमांड निकालना है. अब ये जरा रफ में यहाँ समझ लीजिएगा. पहले ए के लिए फंक्शन कौन सा हो गया, ये कॉब-डगलस सिंपल फार्मूला अगर अप्लाई करें तो सॉल्व हो जाएगा. कॉब-डगलस के फार्मूला में क्या लिखते थे, यूटिलिटी फ्रॉम x1 x2 इज इक्वल टू व्हाट, x1 टू द पावर c x2 टू द पावर d. अगर लिखा है तो x1 की वैल्यू क्या लिखी जाती थी, c बाई c प्लस डी इंटू एम अपॉन P1. और मुझे गुड 2 अगर निकालना होता तो d बाई सी प्लस डी इंटू एम बाई P2 करना था. ठीक है यहाँ तक. तो ये कॉब-डगलस के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिएगा. तो c और d की जगह 1 हो गया, पावर यहाँ पे याद रखिएगा दोनों का 1 है, तो c और d की जगह 1 आ गया. मुझे गुड 2 का डिमांड निकालना है, तो c और d की जगह 1 का मतलब है 1/2. इनकम क्या लिखेंगे, इनकम मतलब एंडाउमेंट का वर्थ P1 W1 प्लस P2 W2, P1 इंटू 0 प्लस P2 इंटू 10. तो P2 इंटू 10 का मतलब हो गया 10 P2 अपॉन P2 किया, ये P2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू रह गई सिर्फ 5. तो इस जगह मैंने सिर्फ लिखा 5. आई रिपीट, डिमांड कैलकुलेट करें गुड 2 का पर्सन ए के लिए. ए के लिए फंक्शन कॉब-डगलस का है, कॉब-डगलस के फॉर्मूले को अप्लाई करके लिखा गया d बाई सी प्लस डी इंटू एम बाई P1. एम की जगह इनकम है P1 W1 प्लस P2 W2, W1 0 था तो 10 P2 सिर्फ लिखा है, 10 P2 बाई P2, P2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हो गई 5. तो पर्सन ए का आपने कैलकुलेट कर लिया डिमांड विच इज़ 5. अब पर्सन बी के लिए कैलकुलेट करो. बी का कैलकुलेशन अब इधर देखना. ये कौन सा फंक्शन हो गया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले अगर याद ना हो तो सिंपली क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म गिवन है वो इक्वेट कर दीजिए और उसको बजट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर लेना. P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू इनकम आ जाएगा, और x1 की जगह x2 आ गया, तो P1 x1 प्लस P2 x1 इज इक्वल टू m. सो x1 इज इक्वल टू m ओवर P1 प्लस P2, और यही वैल्यू x2 भी होगी. तो अब आप ये बताओ उस एग्जांपल के अंदर क्या आएगा. आपको ये कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है x2b की जगह. इनकम कितना होगा सेकंड पर्सन के लिए, उसके लिए P1 W1 प्लस P2 W2. P1 1 है हमारा, ठीक है, P1 को हमने 1 कंसिडर कर रखा है, न्यूमरेटर है. W1 20 हो गया और P2 फाइंड कर रहे हैं, तो 1 इंटू 20 प्लस 5 P2. तो इनकम की जगह ये टर्म आ जाएगा
इसका अगर इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये P1W1 प्लस P2W2 हो गया। P1 1 है तो 20 प्लस 5P2 इनकम की जगह ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 प्लस 5P2 अपॉन P1 प्लस P2। P1 इज़ 1, P2 फाइंड कर रहे हैं। X2B की जगह ये आ गया, ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। X2B हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग दिस स्टेप, जैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। अब ये स्टेप फॉलो करने के बाद इस इक्वेशन में एक ही अननोन है P2, इसको सॉल्व करोगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी 2। तो P1 हमने कंसिडर किया हुआ 1 और P2 कैलकुलेट कर लिया 2। देयरफॉर you solve your first part, P1 by P2 is equal to 1 by 2। मतलब P1 1 लिखना है और P2 2 हो गया। P1 अगर 1 है तो P2 की वैल्यू 2 आई है। इट इज़ बेस्ड अपॉन दैट आर्गुमेंट। अब रेस्ट रह गया कि उसका एक्सचेंज क्या हो रहा है दोनों के बीच। एक्सचेंज के लिए आप इस कंसेप्ट को ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो 1 by 1 एक्सप्लेन कर लो। पहले पर्सन ए कैलकुलेट कर लिया। पर्सन ए का एंडाउमेंट था 0 10 और यूटिलिटी फंक्शन वाज x1 x2। P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू आई है वो 1 by 2 आई है, ये कॉमन रहेगा दोनों के लिए। मैं x1 a कैलकुलेट कर रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ c by c प्लस डी। वैसे ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 by 2 इनकम क्या हो जाएगा, P1 1 है इंटू 0, 2 इंटू 20, सो दैट विल बी 2 इंटू 10, 20 बाई P1 1 हो गया। सो दैट इज़ 20 by 2 10। स्टेप क्लियर है। ये तो C by D हो गया। इनकम की जगह आपने P1W1 प्लस P2W2 किया। ये हो गया ग्रॉस डिमांड। इससे नेट डिमांड कैलकुलेट कर लीजिए। व्हाट इज नेट डिमांड, एक्सेस डिमांड। X1A माइनस ग्रॉस माइनस एंडाउमेंट 10 माइनस व्हाट वाज एंडाउमेंट 0। नेट डिमांड पॉजिटिव आने का मतलब होता है पर्सन इज बायर ऑफ गुड 1। क्लियर। और गुड 2 का डिमांड ए के लिए वैसे फॉर्मूला आ जाएगा D बाई सी प्लस डी इंटू एम बाई P2। सो दैट विल बी हाफ इंटू इनकम तो सेम रहनी है 20 और P2 की वैल्यू है 2। सो दैट विल बी 20 बाई 4 5 और A2A की वैल्यू हो जाएगी X2A माइनस एंडाउमेंट। So that will be 5 minus endowment is 10, 5 minus 10 minus 5. So person is seller of good 2 and buyer of good 1. ये हो गया पर्सन ए के लिए। बट एक्सचेंज दोनों पर्सन के बीच है। तो अगर एक्सचेंज पर्सन ए और बी के बीच हो रहा है तो जितनी क्वांटिटी ये बाई कर रहा है उतनी क्वांटिटी पर्सन बी सेल करना चाहिए। जितनी क्वांटिटी ये सेल कर रहा है उतनी क्वांटिटी पर्सन बी बाई करना चाहिए। पर्सन बी के पास जो एंडाउमेंट था वो 20,5 का था और इसका यूटिलिटी फंक्शन था मिनिमम ऑफ x1, x2। तो x1 जो b के लिए आएगा वो फॉर्मूला अप्लाई करो, इनकम बाई P1 प्लस P2। इनकम की जगह क्या लिखेंगे, P1W1 प्लस P2W2। P1 1 इंटू 20, 2 इंटू 5, सो दैट इज 20 प्लस 10 30। क्लियर है। 1 इंटू 20 किया है, फिर 2 इंटू 5 किया है और P1 प्लस P2 इज 1 प्लस 2 3 10। सो व्हाट विल बी even B, ग्रॉस डिमांड माइनस एंडाउमेंट। ग्रॉस डिमांड 10 है और एंडाउमेंट कितना है 20। 10 माइनस 20 माइनस 10 सेलर। इसने 10 यूनिट बाई किया है, उसने 10 यूनिट गुड 1 का सेल किया। एक्सचेंज एक्चुअल में इन दोनों के बीच ही है। और X2B वो सेम आनी है कॉम्प्लीमेंट में 10 रहेगा। A2B की वैल्यू हो गई X2B माइनस एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 विद B। सो दैट विल बी 10 माइनस एंडाउमेंट 5 है, सो दैट इज पॉजिटिव 5
बायर, इसने सेल किया था 5 यूनिट, उसने 5 यूनिट गुड टू बाई किया, सो दैट एक्सचेंज अकर्स बिटवीन ए एंड बी। ऐसे प्रॉब्लम बेसिकली आपको ये रीडिंग के जो वर्कबुक है वेरिएंट में उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आ रखा है जिसमें एंडाउमेंट के वैल्यू सिर्फ अलग है, रेस्ट क्वेश्चन इज सेम। रेस्ट क्वेश्चन वो सेम था, एंडाउमेंट की जो वैल्यू थी बस वो अलग है। यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1 का बी पार्ट 2014 का, दिस वन। गिवन द इंफॉर्मेशन, फाइंड द प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, फाइंड द रिलेटिव प्राइस। इंडिविजुअल ए का यूटिलिटी फंक्शन x1 x2 एंडाउमेंट 0,20 और बी का मिनिमम ऑफ x1 x2 एंडाउमेंट 40,10। जो एग्जांपल अभी आपने किया उसमें 0,10 था और ये 20,5 था, बस एंडाउमेंट को डबल कर दिया। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर सेम होगा, कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट कर लीजिए। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बट रिमेंबर देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज नाउ वी हैव टू डील विथ 2 पर्सन एंड बोथ पर्सन मे हैव डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन, और डिफरेंट में भी कई सारे पॉसिबल हैं, कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट, क्वासी लीनियर, और दे मे हैव आइडेंटिकल यूटिलिटी फंक्शन एज वेल। तो ये अप्रोच मेनली रहना है जनरल इलेक्ट्रम वाले सेक्शन के अंदर। तो जनरल इलेक्ट्रम वाले सेक्शन का वेटेज ज़्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेगा यहाँ भी। सो विल कंटिन्यू विथ मोर न्यूमेरिकल्स इन दी सब्सिक्वेंट क्लास। तो अभी आज की क्लास में ये 31 चैप्टर हमने बिगिन किया। ओनली वी हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेटो एफिशिएंसी एंड अलजेब्रा ऑफ इक्विलिब्रियम विथ वॉल्डर्स लॉ एंड फॉलोड बाय दिस numerical calculation. So we will continue with the more numerical and the algebra of efficiency further. चैप्टर नंबर 31 कंटिन्यू रहेगा आगे से, क्लियर है। तो बाय दैट टाइम आप क्वेश्चन जितने भी रीडिंग के बैक के वेरिएंट वर्कबुक के वो साथ में सॉल्व करते जाइए, और जो पास पेपर है वो टाइम टू टाइम ये क्लास के अंदर ही हो जाएगा। मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। सो विल कंटिन्यू विद दिस, थैंक यू।